Getting started, students. I think it is started now. All right. Only 5 students have joined. I don't know whether other students forget about the class or something like that. Okay, everyone put your attendance in the chat box. Fine. So now let me present my screen to you. Visible students, I guess in the last class only we have completed our first chapter, is it? Now we are going to start the second chapter, right? Okay, now Vaishnavi has joined. Yeah, fine. So we are going to start the second chapter. Chapter name is Work and Energy. So all of you have to observe these 4 images, pictures, and tell me what are they doing. A student is studying here, right? A boy is playing with the ball, I guess, is it? He's playing with the ball. One girl is watching her favorite cartoon on the TV, and a worker is lifting some stuff, or uh, he's okay. Okay, nice. So many students have joined now. So अभी इन सारे पिक्चर्स में आप देख सकते हो कि everyone is doing something, right? So basically अगर हम इसकी बात करें इन सब सारे एक्टिविटीज की, they they are busy in something, they are doing something, right? So in which of the picture above has work been done? So आप क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन से पिक्चर में एक्चुअल में वर्क हो रहा है? नॉट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं बताना है, किसी ने चैप्टर पढ़ा होगा तो नहीं बताना है किस पिक्चर में वर्क हो रहा है, किस पिक्चर में वर्क नहीं हो रहा है. आई गेस जो सारे पिक्चर है, ऑल 4 पिक्चर्स, उन सब में कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, राइट? इफ द स्टूडेंट इज स्टडिंग, दैट मीन्स शी इज डूइंग द मेंटल वर्क, right? The boy is playing with the ball, so he's doing some physical work. Again, the girl is watching TV, she's also doing some more mental work, right? And the worker that he's working, he's again working, is doing the physical work. So all of the picture are having some kind of work. From scientific point of view, when do we say that no work was done? Now if we talk in a scientific perspective, सो अगर हम यहाँ पे कैटेगराइज करें, सो वर्क कौन से चीज में मतलब हो रहा है, कौन सी चीज में वर्क नहीं हो रहा है, ये हम सीखने की कोशिश करेंगे. सो जनरली एनी मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी इज रेफर्ड टू एज वर्क. व्हेन वी वॉक और रन, the energy in our body is used to do the necessary work. We say that a girl who is studying is working or performing work, but that is mental work, as I already told you, right? She's studying, that means what she's doing, she's doing the mental work. Now in physics we deal with the physical work only. Work has a special meaning in physics. So see, this is the definition of work. Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object. Now you are aware of the thing force and displacement, right? हमने पिछले ही क्लास में सीखा, पिछले ही चैप्टर में सीखा है ना, what is displacement, what is force. So that's why I was repeating the things again and again, because these things are gonna be with you till you pass out your degree. Okay, not 10th, not only 12th, टिल डिग्री आपको ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, ठीक है? सो वर्क की डेफिनेशन क्या है? Work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object. मतलब सिर्फ अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, so that is also not the work done. For work done, we need to apply the force
and on which object we are applying the force, the object should go under displacement. मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कुछ वर्क परफॉर्म हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है. ओके, सो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. रिमेंबर दिस. ऑलराइट. Now, you have already learned that the work done by a force acting on an object is the product of the magnitude of force and the displacement of the object in the direction of the force. Thus, work is equals to force into displacement. Write down this. Okay, this formula you can write down. Work is equals to force into displacement. Everyone, please write down the formula in your notebook. Please keep your notebook with you when you sit, when you are sitting in the class, any of the class. Okay, you have to take the notes. All right. So अभी मैं वर्क का फॉर्मूला किसी को भी पूछूंगा कभी भी तो सबको आना चाहिए. What is it? W is equals to F into S. डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं S से. राइट. नाउ Minakshi wants to displace a wooden block from point A to B along the surface of table as shown in figure 2.2a. She has used force F for the purpose. Has all the energy she spent been used to produce acceleration in the block? Which forces have been overcome using that energy? So see, here Minakshi is shown in the figure A, and she's trying to push this block from पोजीशन ए टू पोजीशन बी. सो उसने जितना फोर्स लगाया है, द टोटल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एक्सेलरेशन और नॉट. मतलब उसने जितना फोर्स लगाया है वो सारा फोर्स एक्सेलरेशन में तब्दील हुआ या फिर नहीं. दिस इज द क्वेश्चन. समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ में आया सबको? अगर आया तो यस लिखना, नहीं आया तो नो लिखना. डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? नो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया. फाइन. ओके, आयुष को समझ में आया, दैट इज गुड. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक द गर्ल इज ट्राइंग टू पुश द वुडन बॉक्स. ठीक है, तो उसने जितना फोर्स उस बॉक्स पे लगाया है, तो उस फोर्स की मदद से उस बॉक्स को एक्सेलरेशन मिल रहा है क्या, या फिर उसमें से कुछ फोर्स वेस्ट जा रहा है? कुछ फोर्स वेस्ट जा रहा है, ऑब्वियसली जाएगा ना, बिकॉज ग्रेविटेशन इज देयर, अगेन फ्रिक्शन इज देयर, इजंट इट? सो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड फ्रिक्शन, मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो आप, मतलब जिन लोगों को समझ में नहीं आया है वो लोग समझ लो. ओके, सो लेट अस सपोज, अभी कैसे मैं आपको बताऊं, जस्ट लेट मी थिंक अबाउट इट. ओके, ओके फाइन. सो मान लीजिए कि अभी आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं. ओके, एंड आपने एक बार लाइक एक्सेलरेटर दिया, 20 की स्पीड आपके आ गई मोटरसाइकिल की. सो अगर आप एक्सेलरेटर मतलब छोड़ दोगे, सो क्या वो 20 की स्पीड से भागेगी मोटरसाइकिल? नहीं भागेगी ना, वो अ, थोड़ा डिस्टेंस पार करके वो रुक जाएगी, इजंट इट? अगर हम एक्सेलरेटर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो रुक जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ग्राउंड का जो फ्रिक्शन है ना, उसके टायर जो है वो ग्राउंड पे चल रहे हैं. अगेन ग्रेविटी इज पुलिंग ऑल्सो दैट मोटरसाइकिल, सो दैट्स व्हाई द मोटरसाइकिल विल स्टॉप. सो सिमिलरली, हमने कुछ एक इनिशियल फोर्स लगाया उस ब्लॉक पे, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से कंप्लीट फोर्स उस ब्लॉक पे अप्लाई नहीं होगा, कंप्लीट एक्सेलरेशन उस पे अप्लाई नहीं होगा. नाउ वी हैव टू अदर सिनेरियोस. अभी पहला सिनेरियो तो खत्म हो गया, ए. Now, you must have seen the events depicted in the pictures B and C above. When a child pulls a toy with the help of a string, the direction of the force is different from that of the displacement. Similarly, when a large vehicle tows a small one, the direction of force and the displacement are different. In both these cases, the direction of force makes an angle with the direction of displacement. Let us see how to calculate work done in such cases. So, एक बेसिक एग्जांपल अगर आप देखोगे, सो इन दिस पिक्चर बी, देखिए ये जो उसका खिलौना है उस गर्ल का, सो इट इज ट्रैवलिंग इन दिस पाथ, इजंट इट? हॉरिजॉन्टल पाथ. लेकिन जो फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन कुछ अलग है.
सी स्ट्रिंग कैसा है, थोड़ा सा ऐसा इंक्लाइंड है ना, स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रेट थोड़ी ना है, इजंट इट? सो जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसकी डायरेक्शन अलग है, और जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन अलग है। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है और फोर्स की डायरेक्शन अलग है? एवरीबडी अंडरस्टूड? एवरीबडी पुट यस if you understood. Okay, Ayush and Kadambari. What about others? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? वैष्णवी, ओके फाइन, विशाल ठीक है, सब सबकी तरफ से आंसर चाहिए मुझे, देन ओनली वी विल प्रोसीड फर्दर। बताओ। ओके, आयुष में था, हु इज रिमेनिंग? भक्ति, वेदांत, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अभी हम ये सीख क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले ही एग्जाम्पल में देखा कि कंप्लीट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर एक्सेलरेशन में नहीं जाता है, राइट? तो इस केस में भी अगर आप देखोगे, सो फोर्स की डायरेक्शन अलग है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है, मतलब जो कंप्लीट फोर्स लग रहा है, द कंप्लीट फोर्स इज नॉट रिजल्टिंग इनटू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, मतलब कंप्लीट फोर्स तो नहीं लग रहा है ना, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ पोर्शन ऑफ फोर्स उस एक्चुअल टॉय पे लग रहा है। तो इस कंडीशन में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? लाइक अगर कंप्लीट फोर्स कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट पे रिजल्ट हो रहा है, ओके, कंप्लीट फोर्स इज रिजल्टिंग इनटू द डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, इजंट इट? लेकिन हमने मान लीजिए कि एक एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया, लेकिन वो एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स इज नॉट रिजल्टिंग इनटू द एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो वेस्ट जा रहा है, समझ रहे हो ना? एक्स जो हमने कंप्लीट फोर्स अप्लाई किया था, वो कंप्लीट एक्स फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उसमें से कुछ वेस्ट जा रहा है, उसमें से 70-80% 60% ही फोर्स लग रहा है। सो ऐसे में जो जब हम वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ओके, मान लीजिए कि हमारा जो फोर्स है वो 100 यूनिट्स है। अभी मैं यहाँ पे उसका एक्चुअल यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू 100 यूनिट्स मैंने लिख दिया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया 1 यूनिट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना लिख दिया? 1 यूनिट। अगर कंप्लीट फोर्स लगता है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 यूनिट से डिस्प्लेस होता है, सो वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन आएगा 100 × 1 = 100, इजंट इट? यस और नो? राइट। नाउ मैं क्या कह रहा हूं कि अभी इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? अलग है, तो कंप्लीट फोर्स नहीं लगेगा, तो मान लो कि फोर्स कितना लगता है? 80 ही लगता है, ओके, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो 1 यूनिट होती है, तो वर्क डन कितना हुआ? 80 हुआ, बराबर? तो यहां पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक सो अभी इस फोर्स फोर्स हमने लगाया कितना है एक्चुअली? इस केस में फोर्स कितना लगाया है? हाउ मच फोर्स वी हैव अप्लाइड? बताइए जरा, कौन बताएगा? हाउ मच फोर्स वी हैव अप्लाइड? हाउ मच फोर्स? ओके, नहीं, सी यहां पे गलती हो रही है, हमने फोर्स जो है वो 100 यूनिट्स ही लगाया है, लेकिन उसमें से कुछ फोर्स जो है वो वेस्ट गया। सो एक्चुअल में कितना फोर्स अप्लाई हुआ? 80 हुआ, लेकिन हमने लगाया कितना? 100 लगाया, राइट, हमने 100 लगाया, लेकिन एक्चुअल में वर्क डन कितना हुआ? 80 यूनिट्स ही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ सम, मतलब कहीं ना कहीं पे भी थोड़ा सा लॉस हो रहा है ना। 100 यूनिट फोर्स अप्लाई किया, लेकिन 80 ही अप्लाई हुआ, सो इस वजह से क्या होता है, हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? नाउ वी कैन सी दैट, ओके। अभी जब कार टोइंग की बात आती है, जो जो बड़ा व्हीकल है एक छोटे व्हीकल को टो करता है, इन दैट केस ऑल्सो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहती है, सी मैं यहाँ पे फोकस किस चीज पे कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे,
ऑलराइट। डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द वर्टिकल लाइन ही होगा, मतलब आपकी फोर व्हीलर हो या फिर आपका खिलौना हो, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, पैरेलल होगी ना, मतलब उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट होनी है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द फोर्स, फोर्स कैन बी फ्रॉम एनी साइड इन एनी डायरेक्शन, isn't it? So ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। Now let F be the applied forcement। अभी मैंने क्या कहा कि F कंप्लीट फोर्स है हमने जो कि अप्लाई किया है, और उसमें से जो F1 है, F फोर्स में से F1 जो है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब जो हम 100 में से 80 की बात कर रहे थे ना, वही यहाँ पे F F F में से F1। ओके, लेट S be the displacement, the amount of work done is W is equals to F1 into S, isn't it? तो अभी हमने यहाँ पे F की जगह पे क्या लिया? F1 लिया, समझ रहे हो? F की जगह पे हमने क्या लिया? F1 लिया। Now tell me, our calculation will be correct or wrong? It will be correct, it will be correct ना, कि जितना मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, दैट इज F1, वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई किया है। सो कैलकुलेशन यहाँ पे सही होगा। ओके, कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा है? अगर हो रहे हो तो मुझे बता दो, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फर्दर। द फोर्स F applied in the direction of string, that is at an angle with the horizontal, let theta be the angle that the string makes with the horizontal, we can determine component F1 of this force F which acts in horizontal direction by means of trigonometry। अभी देखो ये जो ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस ब्लॉक, let me just highlight it, this block is the your toy or car, anything, okay? And this F, this line is your string, समझ रहे हो? ये क्या है? आपकी स्ट्रिंग है, मतलब आप उस स्ट्रिंग को पकड़ के उस कार को खींच रहे हो या फिर उस टॉय को आप खींच रहे हो। ऑलराइट, नाउ अगर आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो आपका जो कंप्लीट फोर्स है वो कितना रहेगा? एफ रहेगा, एंड दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन ओनली। जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में आपका कंप्लीट फोर्स एफ रहेगा। लेकिन हमने क्या कहा कि एफ में से एफ वन फोर्स जो है वो that is in the same direction as that of the force applied और द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में देखो, यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं थोड़ा सा, ये जो फोर्स लग रहा है ना F1, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है, राइट? तो अभी हमें F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। तो अभी मान लीजिए कि ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं वर्ड्स का यूज कर रहा हूं, ज्यादा भारी वर्ड्स नहीं है, ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करना। कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का कुछ हिस्सा जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में है। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का हमारा कुछ हिस्सा है जिसे हमने क्या कहा? F1 कहा। उसी को मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कह रहा हूं कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is in the direction of displacement, that is called F1। All right, now the theta is the angle between F1 and F, मतलब जो हमने एक्चुअल में फोर्स अप्लाई किया और जो फोर्स एक्चुअल में अप्लाई हो रहा है कंपोनेंट ऑफ फोर्स F दैट इज F1, उसके बीच का एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? थीटा किस तरह से आया, किसी को कंफ्यूजन? अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो जल्दी। थीटा कैसे आया, समझ में आया ना? F1 और F के बीच का जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड, अंडरस्टैंड, वेरी वेरी गुड। नाउ we can use the trigonometry here. How can we use the trigonometry here?
cos theta is equals to what? Cos theta is equals to base upon hypotenuse. सबको पता है ये फॉर्मूला? किसी को डाउट है इस फॉर्मूला में कि बेस इंटू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्यों रहता है cos थीटा? cos मींस ओके ओके ओके, फाइन फाइन, ठीक है ठीक है। सो आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री, आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नहीं है आपके मैथमेटिक्स में? ओके, किसी को भी नहीं है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर? नो वन? बताओ, किसी ने ट्रिगोनोमेट्री सुना है? साइन, कॉस, टैन, ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना है। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं आपको एक जस्ट हिंट दे देता हूं, ठीक है? आपको ये कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा आपके मैथमेटिक्स में, ठीक है? लेकिन अभी आपको पता नहीं है और आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये किस तरह से होता है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट ओपन अ न्यू ब्लैंक पेज टू make you comfortable with trigonometry. Okay, just give me a second. Now we have a blank page. All right, sorry, I don't want this triangle, I want a right angle triangle. Okay, so this is the right angle triangle. I hope it is visible to everyone, isn't it? सब लोग लिख लो, जो मैं बता रहा हूं ना वो सब लिख लो, क्योंकि आपको बाद में ये कोई नहीं बताएगा। मतलब बताएंगे लेकिन आपको मैथमेटिक्स में ही होगा, ठीक है? अभी अगर साइंस के चैप्टर में मतलब कहीं पे भी साइन कॉस टैन आता है तो मैं आपको फिर से नहीं बताने वाला, एक ही बार बता रहा हूँ, ठीक है? सो ये हमारे पास ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में वी हैव, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। ओके, सो वी हैव नेम एज ए बी सी। जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज हैं, साइन हाइपोटेनियस मीन्स इफ यू आर फ्रॉम मराठी बैकग्राउंड, सो इट इज कॉल्ड कर्ण, द साइड विच इज अपोजिट टू द राइट एंगल। ठीक है, समझ रहे हो विशाल? जो राइट एंगल के सामने की साइड रहती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ओके, ठीक है। सो यहां पे ये क्या है? दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस, एंड दिस इज हाइट। सब लोग ये लिख लो। हाइपोटेनियस में और हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस मतलब समझना चाहिए आपको, ठीक है? नहीं तो दोनों जगह पे एच लिख दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, सो या यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल है। नाउ यहां पे मेरे पास एक एंगल थीटा है, ठीक है? यहां पे मेरे पास एंगल एंगल क्या है? थीटा है। सो मैं आपको तीन रेशोज बताऊंगा, ठीक है? तीन रेशोज क्या रहेंगे? पहला रेशो है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अभी साइन थीटा अगर आपको निकालना है, सो थीटा कहां पे है? थीटा यहां पे है। साइन यानी कि द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ द एंगल। सो विच साइड इज इन फ्रंट ऑफ द एंगल? Which side is front of is in front of the angle? Which side from the given triangle? जो हमारा एंगल थीटा है उस एंगल थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? देखो, फिगर में दिया है ना, ये फिगर है आपकी, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है? अब तो बता दो। ए बी? ए बी है ना? या फिर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है? ए बी है, नो कंफ्यूजन, ठीक है। सो साइन थीटा की जब हम बात करते हैं, देन यू कैन आइदर राइट हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस ही आएगा, या फिर आप लिख सकते हो ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? ए बी अपॉन ए सी। अब ये साइन थीटा क्या होता है, कैसे होता है, ये सब अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। सो साइन थीटा यानी कि क्या, कोई बताएगा? साइन थीटा यानी कि
थीटा के सामने की जो साइड है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ऑलराइट, यहां पे थीटा कभी भी 90 डिग्री नहीं रह सकता। ओके, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, तो थोड़ा सा हमें मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, या नाउ अभी साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अभी मुझे बताना कि इस थीटा के साइड में कौन सी साइड है। उसके बाजू में कौन सी साइड है हाइपोटेनियस के अलावा। एडजेसेंट साइड कौन सी है, थीटा के एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी, इज इट राइट ना, सी, बी सी इज द साइड, सो बी सी बाय ए सी हाइपोटेनियस रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो एक बात समझ लो, जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, उस एंगल के सामने की साइड लेनी है, डिवाइडेड बाय क्या लेना है, हाइपोटेनियस लेना है। क्लियर साइन थीटा। ओके, नाउ कॉस थीटा में हमें क्या करना है, कॉस थीटा में हमें उस एंगल के साइड की साइड लेनी है, द साइड विच इज एडजेसेंट टू द एंगल थीटा, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा सबको समझ में आया। अभी टैन थीटा क्या होता है, मैं ये तीन ही रेशो बताऊंगा, एक्चुअल में 6 रेशोज है लेकिन आपको अभी 3 रेशोज ही ठीक है। सो टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे तो साइन थीटा क्या है, ए बी बाय ए सी डिवाइडेड बाय बी सी बाय ए सी। सो ए सी कट जाएगा, क्या रहेगा, ए बी बाय ए सी। अभी साइन कॉस टैन सबने लिख लिया, एवरीबडी रिटन ऑन योर नोटबुक। ठीक है, साइन थीटा होता है थीटा एंगल के सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एंगल के एंगल की एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, या फिर जो सामने वाली साइड है वो डिवाइडेड बाय द साइड विच इज एडजेसेंट टू द एंगल। सबको क्लियर है साइन थीटा कॉस थीटा। अभी हम आते हैं हमारे इस चैप्टर पे। ओके, तो अभी देखिए कॉस थीटा क्या रहेगा, बताना जरा, कॉस थीटा क्या रहेगा। कॉस थीटा रहेगा F1/F। F1 इज व्हाट, अभी एंगल के साइड में कौन सी साइड है यहां पे, F1 है। कैन यू सी हियर, दिस इज F1, एंड हमारा हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है बताना जरा, चैट बॉक्स में लिखना, व्हाट इज हाइपोटेनियस, F, कैपिटल F, राइट। सो कॉस थीटा को हमने यहां पे क्या लिख दिया, F1 डिवाइडेड बाय F। किसी को यहां तक कंफ्यूजन, कॉस थीटा हमने किस तरीके से निकाला, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, गुड। सो लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं क्या करूंगा, हमें F1 की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको याद होगा तो हमें क्या करना है, F की वैल्यू हमें पता है ना कितना फोर्स लगा है, ये तो हमें पता है कि नहीं पता है। हमें क्या पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि F1 की, हमने तो 100 यूनिट्स फोर्स लगाया है लेकिन उसमें से लगा कितना, हाउ डू वी नो, बराबर ना। सो F1 इज द अननोन क्वांटिटी दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो हम इस एक्सप्रेशन को चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे, cos थीटा इज इक्वल्स टू F1/F है, तो इस F को cos थीटा के मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, सो ये बनेगा F1 इज इक्वल्स टू F इंटू cos थीटा। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन गया है आपके सामने, जिससे कि आप फोर्स निकाल सकते हो कितना लगा है एक्चुअल में, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। निकाल सकते हो या फिर नहीं, बताना जरा मुझे, एस और नो, किस किस को लगता है कि निकाल सकते हैं, यस और नो, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखना जरा।
हमारे पास एफ है, एफ पता है हमें, एफ पता है ना हमें, कितना फोर्स हमने लगाया वो हमें पता है। थीटा पता है हमें, थीटा, थीटा पता है ना, थीटा एंगल। सो हम कॉस थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा ना सर ये कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिखें, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको मतलब मैथमेटिक्स में कंप्लीटली समझाया जाएगा कि अगर cos 0 है तो क्या वैल्यू लेनी है आपको, cos 30 है तो क्या आपको वैल्यू लेनी है, cos 45 है, मतलब ये सारे वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, सो आपको कुछ चीजें याद करनी है, सो जिससे कि आपको आसानी होगी। अभी मतलब इट इज क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी कि आप लोगों ने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं सीखा है, सो मे बी आपके सिलेबस में रहेगा, दैट इज नॉट द इश्यू। ठीक है, सो cos थीटा की एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के साथ में आप क्या करोगे, उस f को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज बीइंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी थीटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, बराबर ना, लाइक थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इट कैन बी 30, इट कैन बी 45, इट कैन बी 90 ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, cos थीटा की वैल्यू चेंज होती है, जो कि मैंने आपको बताया है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा हमारे f1 की वैल्यू चेंज होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन, सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, जितना मैंने, या नो डाउट, ओके, गुड। चलो, सो लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं समझ के चल रहा हूं कि F1 इज इक्वल्स टू एफ इंटू कॉस थीटा, तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है टिल दिस स्टेटमेंट। ओके वेट, till this statement, sorry, no, this statement. Okay, thus work done by F1 is W is equals to F cos theta into S। तो F1 ने जो वर्क डन किया, तो अभी यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू F1S था, तो F1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, F cos थीटा लिख दिया, F cos थीटा लिख दिया, बराबर ना। सो इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट आएगा, बराबर ना। सो इस एस को हमने क्या किया, इस एस को, जस्ट गिव मी सेकंड, ओके, सो इस एस को मैंने सिर्फ यहां पे ले लिया, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एंटर योर कंक्लूजन अबाउट द वर्क डन फॉर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ थीटा इन द फॉलोइंग टेबल। तो अभी इस टेबल को अब जब पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से थीटा की वैल्यू चेंज होती है और किस तरीके से फोर्स पे उसका असर होता है। ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट, एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सी, अभी थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो इस फिगर में आपको उसे विजुअलाइज करना है कि थीटा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, व्हेन कैन बी द वैल्यू ऑफ थीटा बी 0, the value of theta can be 0 only when the f is in this direction। ठीक है, f अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तभी थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, बराबर ना। मतलब अगर हम कोई हमारा व्हाट वी कैन से टॉय है, जिसे कि हम क्या कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो खींचा जा रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब हम एकदम ऐसे रेंग के उसे खींच रहे हैं, समझ रहे हो ना, हम उसी लेवल पे जाके उसको खींच रहे हैं। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 0, एंगल 0 रहेगा ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना आप। मैं फिर से आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये आपका टॉय है, ठीक है, ये आपका टॉय है, और ये आप यहाँ पे खड़े हो और आपने ये हाथ में ऐसे पकड़ा है और आप इसे खींचते चले जा रहे हो, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अभी आप नीचे बैठ गए और आपने आपका हाथ जो है वो इसी लेवल पे ले लिया और उसी स्ट्रिंग को इसी लेवल से आप खींच रहे हो, ठीक है, आप ऐसे नीचे बैठ के उसे खींच रहे हो। सो उस केस में क्या होगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 0 होने के बाद में cos थीटा की वैल्यू होती है 1, लिख लो। cos थीटा की वैल्यू क्या, cos थीटा की नहीं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो cos 0 की वैल्यू होती है, तो फोर्स क्या रहेगा हमारा, वर्क डन क्या रहेगा, F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं
हम किस लेवल पे गए हैं? उस टॉय की लेवल पे गए हैं। मतलब हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना फोर्स कन्वर्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट में। अंडरस्टूड? समझ रहे हो ना? जब हम उस टॉय की लेवल पे जाके उसे खींच रहे हैं तो कंप्लीट हमारा जो टोटल फोर्स है वो उस टॉय पे अप्लाई हो रहा है, एंड दैट कंप्लीट फोर्स इज रिजल्टिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहां पे हमारा वेस्ट नहीं जा रहा है। अभी आप कहोगे कि सर हम तो ग्राउंड पे चला रहे हैं तो ग्राउंड से तो मतलब उसका फ्रिक्शन रहेगा ही, लेकिन डोंट कंसीडर इट एज ग्राउंड और सम एनी अदर रेजिस्टेंस। कंसीडर इट एज ए आइडियल कंडीशन। मतलब हम एक आइडियल कंडीशन है जिसपे भी हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, देर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द टॉय, दैट इज द फोर्स वी आर अप्लाइंग। ठीक है? अभी मुझे बताना किस किस को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं उस लेवल पे जाके तो सारा फोर्स उसी टॉय पे लगेगा, हमारा फोर्स वेस्ट नहीं जाएगा। आपको लगता है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा? डू यू थिंक इज इट इज लाइक इमेजिनेबल? आप इमेजिन कर पा रहे हो कि किस तरीके से ये हो रहा है? अगर नहीं कर पा रहे हो तो फ्रैंकली बता दो, हम मैं फिर से आपको इलाबरेट करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? नो कंफ्यूजन, नो नो डाउट। ठीक है, ओके, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस कि आपको कोई डाउट नहीं है। चलो, तो अभी हमने क्या किया, ग्राउंड लेवल पे जाके उस स्ट्रिंग को हमने खींचा, तो क्या हुआ, हमारा कंप्लीट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट में रिजल्ट हो रहा था। नाउ वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ थीटा इनटू 90। अभी थीटा 90 रहेगा मतलब क्या, हम इस डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तब जाके थीटा 90 होगा, बराबर ना? तो आप मुझे बताना, अगर आप उस टॉय को सीधा ऊपर खींचोगे, लाइक इन इन द 90 डिग्री पोजीशन, सो क्या उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा? विल देयर बी एनी डिस्प्लेसमेंट? नो। So if there is no displacement, displacement is zero, so work done should be, if displacement is zero, work done should be zero. All right, so देख लो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये कहां से आया, क्यों आया, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। ये आपको मैथमेटिक्स में ये अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि cos जीरो की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो वर्क डन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। बराबर कि नहीं? या गुड। नाउ लास्टली वी हैव थीटा एज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यानी कि क्या, हमें इस हमें इस टॉय को डिस्प्लेसमेंट करना है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेस करना है। लेकिन अभी 180 डिग्री यानी कि कंप्लीट दिस एंगल, राइट, दिस इज 180 डिग्री एंगल, और हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से उसे फोर्स लगा रहे हैं, लाइक इस डायरेक्शन में हम उसे खींच रहे हैं। समझ रहे हो, यही स्ट्रिंग हमने क्या किया, उल्टा घुमाया। सो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जिस डायरेक्शन में हमें भेजना है उस डायरेक्शन में तो वो जा नहीं रहा है, इट इज गोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, इजंट इट? सो वर्क डन कैसा रहेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वर्क डन कैसा रहेगा, वर्क डन भी नेगेटिव रहेगा, बराबर ना? सो cos 180 की वैल्यू होती है -1। दैट इज वाई, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। ठीक है, हमारा एक्चुअल में, जरा सा देखना, सॉरी, हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। सो अभी यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या बचा, सिर्फ एफ इंटू एस बचा, क्योंकि कॉस थीटा तो 1 हो गया ना। इस कंडीशन में अगर हम बोले तो W इज इक्वल्स टू क्या था, एफ एस इंटू कॉस थीटा था। सो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। सो अगर cos थीटा 0 हो जाएगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 0 आ गया, बराबर। नाउ W इज इक्वल्स टू, इसमें भी एफ एस इंटू कॉस थीटा है, ये फॉर्मूला आप रट लो, ध्यान में रख दो। सो यहाँ पे क्या है हमारा, cos थीटा क्या है, cos 180, cos 180 इज -1। सो वर्क डन विल बी माइनस एफ एस,
ठीक है, तो इस तरीके से हम cos थीटा अप्लाई कर रहे हैं। आप मतलब वंडर कर रहे होगे कि सर फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है, आपने ऊपर तो कुछ अलग फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पे कुछ हम अलग ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो ये फॉर्मूला रिड्यूस क्यों हो रहा है? रिड्यूस इस वजह से हो रहा है क्योंकि हम वहां पे cos थीटा की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। cos थीटा की वैल्यू 1 आई थी तो हमने 1 लिख दिया, 0 आई थी तो 0 लिख दिया, -1 आई थी तो -1 लिख दिया। इसकी वजह से वो फॉर्मूला श्रिंक हो गया। ऑलराइट, ओके, गुड। सो आई होप कि आपको cos थीटा, sin थीटा, वर्क डन का फॉर्मूला, ये सारी चीजें क्लियर है। किसको क्लियर नहीं है? इफ यू हैव स्लाइटेस्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। नो डाउट, ओके, दैट्स गुड। Okay, I'm happy that everybody is attentive and everybody is responding in the chat box. That is really nice. Okay, good. Now, unit of work. अभी हम इतने देर से बात कर रहे थे तो ये वर्क के बारे में, वर्क डन के बारे में। सो यूनिट क्या है वर्क का? वी हैव वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज एफ इंटू एस और एफ एस इंटू कॉस थीटा। सी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है पता है आपको? जब थीटा की वैल्यू जीरो हो। थीटा की वैल्यू जीरो हो तो वर्क वर्क इज इक्वल टू क्या रहेगा? एफ इंटू एस रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा वन होता है। कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है। सो कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, वहां पे वन आएगा सिर्फ। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस। सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल when when the value of theta is 0. Value of theta is 0 means value of cos theta is 1, and that is why this is the formula. ये आपको पक्का दिमाग में रखना है। जीरो क्या है? जीरो थीटा है। cos थीटा क्या होगा? 1 होगा। ये आप टेबल ही याद कर लो। ये इतना जो छोटा सा टेबल दिया है ना यहाँ पे, कि अगर थीटा 0 है तो cos थीटा 1 है, अगर थीटा 90 है तो cos थीटा 0 है, और अगर थीटा 180 है तो cos थीटा क्या है? -1 है। ठीक है, इतना टेबल याद कर लो, बाकी कंफ्यूजन की आपको यही नहीं रहेगी। नाउ, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। ओके, ये आपको पता है कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। दस द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड जूल। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स की जगह पे यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क होना चाहिए। द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल, right? So 1 joule is equals to, if a force of 1 newton displaces an object through 1 meter in the direction of force, the amount of work done on the object is 1 joule. So 1 joule is equals to क्या है? 1 joule is equals to है 1 newton into 1 meter. 1 j is equals to 1 capital N multiplied by 1 small n. नाउ इन सीजीएस जो हमने पढ़ा यहाँ पे, जूल, जूल इज द यूनिट इन एसआई सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन and that of displacement is centimeter. Thus, the unit of work done is dyne centimeter. This is called erg. What it is called? Erg. E-R-G means erg. So, इन एसआई सिस्टम वर्क डन का यूनिट है जूल, इन सीजीएस सिस्टम वर्क डन का यूनिट है डाइन सेंटीमीटर और अर्ग। 1 erg is equals to, if a force of 1 dian displaces an object through 1 centimeter in the direction of force, the amount of work done is erg, 1 erg. So 1 erg is equals to 1 dian into 1 centimeter. Now relationship between joule and erg. So we know that 1 newton is equals to 10 raised to the power 5 dian. अभी आपको पता है नहीं है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे समझ लो कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 10 रेज टू द पावर 5 डायन, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 2। ये सबको पता होना चाहिए। 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स, राइट? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ये तो सबको पता ही होगा। ओके, गुड। सो देखो,
1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁵2 सेंटीमीटर. सो वर्क विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. सो हम 1 जूल के लिए निकाल रहे हैं यहाँ पे. तो 1 जूल के लिए मैं 1 न्यूटन की जगह पे 10⁵5 डायन लिखता हूँ और 1 मीटर की जगह पे 10⁵2 सेंटीमीटर लिखता हूँ. सो ये बन जाएगा 10⁻7 डायन सेंटीमीटर्स and 1 joule is equals to we can say 10⁻7 erg. ठीक है. सो 1 जूल इज इक्वल्स टू कितना है? 10⁻7 erg. ये आपको याद रखना है. ऑल राइट. ओके फाइन. चलो. सो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन. Discuss the direction of force and the displacement in each of the following cases. So पॉजिटिव वर्क हो, नेगेटिव वर्क हो या फिर जीरो वर्क डन हो, इस केस में what is the important thing? The important thing is direction of applied force and direction of displacement. Direction of applied force and direction of displacement plays key role in determining whether the work is positive, whether the work done is negative, or whether the work done is zero. All right. यहाँ तक किसी को डाउट? एक बार मुझे बताना कि मेरा आवाज मतलब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है? क्लियर है? क्लियर आवाज है मेरा? ओके. इफ नॉट देन आई हैव टू मेक द अरेंजमेंट्स. ओके ओके फाइन फाइन. या गुड. सो ये जो सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं ना, तो ये आप वन बाय वन इसको देख लो, पढ़ लो एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो वर्क करता है. नाउ यू विल नोटिस दैट इन सम ऑफ द अबव एग्जांपल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर सेम. इन अदर केसेस द डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर while in some cases they are perpendicular to each other. In these cases the work done by the force is as follows. तो हमने पिछले भी एग्जांपल में देखा है जब हम उस डायग्राम पे वर्क कर रहे थे ना कि वर्क डन डिपेंड किस चीज पे करता है? मेनली वर्क डन डिपेंड करता है direction of force पे, right? So see in the first example when the force of the displacement, when the force and the displacement are in the same direction, that is theta is equals to 0 degree, the work done by the force is positive. थीटा कैसा है? 0 डिग्री है. बराबर. तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है? डिस्प्लेसमेंट की है. तो इस केस में क्या होगा? वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Now, next second one is when the force and the displacement are in opposite direction. Opposite direction में मतलब हम किसी हम किसी और डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, लेकिन फोर्स जो है वो उसके रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं. सो दैट विल बी नेगेटिव वर्क डन या फिर नेगेटिव वर्क डन. बराबर ना? लाइक अगर आपको पिताजी ने कहा कि आप क्या करना, घर से पैसे लेना, सॉरी आप बैंक जाना, बैंक से पैसे निकाल के घर ले आना. सो दैट इज आप क्या कर रहे हो? उस पैसों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो बैंक से घर कर रहे हो. सो दैट इज पॉजिटिव वर्क डन. जैसे बोला गया वैसे किया आपने, इजंट इट? लेकिन आपको अगर बोला गया कि बैंक से जाके पैसे निकाल के आओ, और उसकी जगह पे आप क्या कर रहे हो कि वो बैंक में जाके पैसे डाल के आ रहे हो. सो दैट इज व्हाट? दैट इज नेगेटिव वर्क डन. आपने गलत काम किया है, उल्टा काम किया है, इजंट इट? सो हम जिस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है, वाई, क्यों नहीं हो रही है? why the displacement is not happening in the direction which is intended? क्यों ऐसा हो रहा है? बताना जरा मुझे. डिस्प्लेसमेंट हम जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि फोर्स हम गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं. क्योंकि फोर्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. 180 डिग्री एंगल है, यानी कि फोर्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. अभी when the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, that is theta is equals to 90, the work done by force is the zero. बराबर. सो अगर क्या, बताना जरा, can anyone tell by turning on your mic if anyone is interested? वर्क डन जीरो कब रहेगा?
कोई भी बता सकता है, सिर्फ आपका चैट बॉक्स में नाम लिखो और बता दो। डेफिनेशन गलत हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में बता सकते हो। एंड आई कैन अश्योर यू, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे बताएगा ना क्लास में, वो कभी नहीं भूलेगा, उसको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहेगी ये सब चीजें। व्हेन वर्क डन इज जीरो, हु इज गोना डेयर? ओके, कादम्बरी, गो अहेड कादम्बरी। When the applied force does not cause any displacement, or when the force and the displacement are perpendicular to each other, theta is equal to 90 degree, the work done by the force is zero. एग्जैक्टली, वेरी गुड। व्हाट इज हार्ड इन इट? बाकी सब लोग क्यों नहीं बता सकते? अभी चलो, वन बाय वन मुझे बताना। अभी नेक्स्ट वन, कौन बताएगा कि पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? हु इज इंटरेस्टेड? एक्सेप्ट कादम्बरी, नाउ कादम्बरी हैज डन। हु इज इंटरेस्टेड? पॉजिटिव वर्क डन, बोलो, बोलना सीखो। यू हैव टू स्पीक, ठीक है? डरने की बात नहीं है, गलत हो जाएगा, पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो जाएगी। यहाँ पे कोई हंसने थोड़ी वाला है हमें, यहाँ पे तो हमें कोई देख भी नहीं रहा है। वी आर इन अ वर्चुअल मीट, इजंट इट? सो टेक इनिशिएटिव। नाउ आप लोग ना, ओके भक्ति, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। भक्ति प्लीज रीड। When the force and the displacement are in the same direction, the work performed on an object is said to be positive work. वेरी गुड, वेरी गुड भक्ति। हु इज नेक्स्ट वन? नेगेटिव वर्क कौन बताएगा? नेगेटिव वर्क कौन बताएगा? बॉयज, दो गर्ल्स ने आंसर दे दिया है। व्हाट आर यू डूइंग? ओके आयुष, गो अहेड। नेगेटिव वर्क, या रीड आयुष। या आयुष, कैन यू रीड? I think Ayush is facing some issues with his network or maybe is in something else. Who else wanna take the chance? किसको रीड करना है? चलो अभी ये यहाँ पे खत्म करना है, बाकी बाकी सारी चीजें जो है हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी सिर्फ आप नेगेटिव वर्क डन का डेफिनेशन कोई तो पढ़ना है या फिर बताना है अपने वर्ड्स में, एंड विल फिनिश द क्लास, देन यू कैन हैव योर डिनर। लास्ट डेफिनेशन, why you people are taking so much time? Okay, now I have to take the name. Vinith, turn on your mic and read the definition. Vinith Patil, turn on your mic and read definition quickly. Vinith, if you're there. Vinith, everybody is starving. Everybody is very hungry. I don't know about you, but I am very hungry. I need to go for dinner. So please turn on your mic and set us free. ठीक है, विनीत नहीं, चलो नेक्स्ट। नो, विनीत इज नॉट प्रेजेंट। हु एल्स? चलो एक डेफिनेशन पढ़ो अभी और क्लास खत्म करो। नेगेटिव वर्क डन क्या होता है आपके सामने? ओके, नाउ या कादम्बरी हैज स्टार्टेड एंड शी इज गोना फिनिश इट। कादम्बरी, फिनिश द डेफिनेशन। When the force and the displacement are in opposite direction, theta is equal to 180 degree. The work done by the force is negative. ओके, वेरी गुड। सो virtual claps for Kadambari and Bhakti. They have dared to read the definitions online. Okay, अभी नेक्स्ट क्लास में से सबने मतलब रीड करना है। ओके, सो अभी मैं आपको ज्यादा यहाँ पे रोकूंगा नहीं। आई होप कि आपको जो मैंने पढ़ाया आज आपको अच्छे से समझ में आया। घर जाके अच्छे से रिवाइज रिवीजन करना, कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बता सकते हो। ओके,
So till then, bye bye. I will see you in the next class. Bye and good night. Now you can leave the class. Leave the class, students. You can leave the class. Bye bye, everyone. Okay, Vishal was eating. Okay, fine. Leave the class. Okay, fine. No, no issues. Fine. Vishal, leave the class. Okay.